ललित झा, मनोरंजन देवेगौड़ा, सागर शर्मा, अमल शेंडे, नीलम शर्मा आजाद प्रत्येके राष्ट्रविरोधी सन्त्रासबादी। अमृतकाले महामहिम सरकार एদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ ধারায় যখন অভিযোগ করেছে তখন দেশভক্ত সব মানুষকে বলতেই হবে ওরা রাষ্ট্রবিরোধী সন্ত্রাসবাদী। ওই পাঁচজনের গুরু ভগৎ সিংও তাই ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের চোখে রাষ্ট্রবিরোধী সন্ত্রাসবাদী। 13 ডিসেম্বর মনোরঞ্জন এবং সাগর লোকসভার কক্ষে নেমে যান দর্শক গ্যালারি থেকে। ওরা হাতের সামনে পেয়েও কোনো এমপির গায়ে হাত দেননি, বরং এমপিরা ওদের ধরে ফেলে কয়েকজন হাতের সুখ করে নিয়েছেন। ঠিক করেছেন, ওরা দেশ বিরোধী, না হলে ওভাবে কেউ লোকসভায় ঢোকে? লোকসভা কত দামি ওরা জানেন? লোকসভার 43% এমপির বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল কেস আছে। 543 জন এমপির মধ্যে 475 জনই কোটিপতি। লোকসভার এমপিদের গড় সম্পত্তি 20.5 কোটি টাকা। নিরাপত্তার ফোকল বলে সেই লোকসভায় ঢুকে পড়ল যারা, তাঁরা দেশবিরোধী নন। लेकिन जो लोग ऊंचा सुनते हैं ना, उनको धमाके की जरूरत होती है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब Put your hands up। লোকসভা এমপিদের মধ্যে আছেন রমেশ বিধুরি, যিনি মুসলিম এমপি দানিশ আলীকে যা তা গালাগাল করেও দিব্যি আছেন। उग्रवादी आतंकवादी है, उग्रवादी है, मुल्ला आतंकवादी है। इसी बात को बाहर देखो इस मुल्ले को। এমপি ব্রিজভূষণ শরণ সিং, যার বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ তুলে দিনের পর দিন দিল্লির ফুটপাতে রাত জেগেছে দুনিয়ার দরবারে মেডেল জেতা কুস্তিগির বিনেশ ফোগট, সাক্ষী মালিক, বজরং পুনিয়া, সঙ্গীতা ফোগটরা ব্রিজভূষণের একটা লোমও ছিঁড়তে পারেনি, উল্টে পুলিশ টেনে হিঁচড়ে কুস্তিগিরদের তুলে দিয়েছে। दिल्ली से शुरू किए थे, ये टोल पकड़ करके धीरे धीरे पंजाब जा रहे हैं और पंजाब जाने के बाद ये खालिस्तान पहुंचता है, ये कनाडा पहुंचता है। कनाडा मतलब खालिस्तान, मतलब राष्ट्रद्रोहियों के बिल्कुल बिल्कुल हाथ में है। जब नारा लगता है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, तो कहां जा रहा है? লোকসভার এমপি সাক্ষী মহারাজ শিক্ষিকাকে গণধর্ষণ, অধ্যাপিকাকে খুন সহ একাধিক পালক তার মুকুটে। नाथूराम गॉडसे भी एक राष्ट्रभक्त था और महात्मा गांधी जी ने भी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। तो लोगों का अपने तरीके से सोचने का तरीका है। एमपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांवते विस्फोरणे युक्त एक जंगी। नाथूराम गॉडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। दल से बड़ा देश है, हमारे दिल से भी बड़ा हमारा देशवासी है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। পার্লামেন্ট চত্বরের বাইরে থাকা অমল শিন্ডে, নীলম যাদবের মুখে ও মোদির স্লোগান। ভক্তরা জানে ও সব পুরোটা চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা। আরে ওরা মণিপুরের কথা বলছে, দেশ বিরোধী না হয়ে যায়। মণিপুরে দাঙ্গা শুরুর ৭৭ দিন পর বিশ্বগুরু মুখ খোলেন, তাতেই তো স্পষ্ট হয়ে যায় শয়ে শয়ে খুন, ধর্ষণ, হাজার হাজার লোকের ঘরছাড়া হওয়া ছোট্ট ঘটনা। তিনি তো লোকসভাতেও বলেছেন। তারপরও মণিপুর মণিপুর বলে যারা চেঁচায় তারা আলবাত দেশদ্রোহী। না হলে 1200 কোটি টাকা খরচ করে বানানো লোকসভায় কড়া সিকিউরিটিকে মুরগি করে ওভাবে ঢুকে পড়ে। নিজের এলাকায় 100 দিনের কাজে দুর্নীতি ফাঁস করা নীলমের ভাষণ শুনলেই বুঝবেন। इससे लोगों में जागृति आई है। जो मंत्रियों को ही अपना मसीहा समझते थे, मंत्रियों के आगे बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, आज वही लोग काले झंडे दिखाने लगे हैं। जो अमित शाह है, भारत का गृह मंत्री है, जिनकी रैली थी, तो उनको जो उनके आने का जो प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल करवाया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। भारत के गृह मंत्री को आने से रोकना, उनका विरोध प्रदर्शन करना। যারা গেছিল
তাদের কোনো ভয়ঙ্কর কোনো আতঙ্কবাদী নয়, তারা টেররিস্ট নয়। আমি তাদেরকে প্রোটেস্টার বলতে চাই, তারা কিন্তু প্রতিবাদী। দেশ বিরোধী শক্তির মুখে এই কথাই শোনা যাবে। দুদিন আগে সূর্যকান্ত মিশ্র তার পোস্টে একই ধরনের বলেছে, এরা চাকরি পায়নি বলে সংসদে হামলা করেছে। এটা কখনো কোনো সুস্থ মাথার লোকের কথা হতে পারে না। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। वो पार्लियामेंट में उनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए कुछ लोग, उनकी विचारधारा के साथ जुड़े हुए कुछ लोगों ने वो छलांग मारी है और वो कहते हैं इसका कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। अब ऐसे किसका कारण क्या होता है इसमें मैं क्या करूं? अब वो टिप्पणी देते हैं, लोग हंसते हैं, अब क्या करें? तुमने कभी कोई फॉर्म फिल किया? रेलवे को 400 एक्स्ट्रा दिया, मैंने भी दिया। मेरी उम्र के बेरोजगारों, जाति धर्म के चश्मे उतारो, देखो ये कमीशन दे रहे हैं हमको पेंशन। तो गाओ तो नौकरी नौकरी हमको दो, नौकरी नौकरी हमको दो। तो बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और प्रतियोगी परीक्षाएं ना करवाए जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में छात्रों ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया है। ऐसी तस्वीरें बिहार से भी आई हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, हापुड़, प्रयागराज, अलीगढ़, वहां से ये तस्वीरें आई हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों से গ্র্যাজুয়েট প্রাইভেট টিউটর ললিত, ইঞ্জিনিয়ার মনোরঞ্জন, টোটো চালানো সাগর, সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে যাওয়া অমল, বিএ, এমএ, বিএড, সিটিইটি, এমফিল, নেট উত্তীর্ণ নীলামরা আলবাত দেশ বিরোধী। তাই ওদের চোখে পড়ে না এন্টায়ার পলিটিক্যাল সায়েন্সে এমএ বিশ্বগুরুর জমানায় 3000 কোটি টাকা খরচে তৈরি বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু সর্দার প্যাটেলের মূর্তি, ঝকঝকে আধুনিক সিঙ্গেল বসানো পার্লামেন্ট ভবন, চাঁদে ভারত, বন্দে ভারত, 1800 কোটির বেশি খরচে তৈরি রাম মন্দির। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम। हिंदुस्तान में रहना होगा, लेकर नहीं जाएंगे। ললিত, মনোরঞ্জন, সাগর, অমল, নীলমরা কোনো নির্দিষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে নয়, ওরা এই রাজনৈতিক সিস্টেমের বিরুদ্ধে। তাই কোনো রাজনৈতিক দল ওদের জন্য গলা ফাটায় না, পার্লামেন্টের নিরাপত্তা নিয়ে তরজায় মেতে থাকে। মেইনস্ট্রিম মিডিয়া হাস্যকর নাটকে মেতে ওঠে, পার্লামেন্টের নিরাপত্তার ফাঁক ফোকর খোঁজে। সাগরের ডায়েরি, মনোরঞ্জনের ঘরের বই হাতে বেড়ায়। ললিত কেন মোবাইল পুড়িয়ে ফেললেন, নীলম আগে কোন কোন আন্দোলনে থেকেছেন সেসব খোঁজে। যত কেঁচো খোঁজে তত কেউটে বেরোয়, ততই জানা যায় ললিত, মনোরঞ্জন, সাগর, অমল, নীলমদের হিরোদের নাম ভগৎ সিং, সুভাষচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, BR আম্বেদকর। करके हम न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आए। Made, she says that what Neelam did was right. मैं एक हिसाब से तो ठीक मानती हूँ, जो बेरोजगारी का हिसाब तो उसी मुद्दा उठाया गया, नारे लगाए गए, मैं ये गलत नहीं मानती। जायज मानती हैं आप इसको? हाँ, जायज मानती हूँ। तो बेटी के समर्थन में है आप, बेटी ने ठीक किया? बेटी ने इस हिसाब से तो ठीक किया है।
बेरोजगारी का तो बड़ा मुद्दा है, ये तो पता था हमें सर। क्यों उसमें मैं पहले उसके साथ गया था दिल्ली, उसका शायद TGT का इंटरव्यू था, तो उसमें हमने देखा हमारे सामने ही बिल्कुल जो जिसके नंबर भी कम थे वो तो ले ली, और वो बोला कि आपका नीलम देवी है, एफिडेविट बनवा के लेके आओ। अब दिल्ली से यहाँ पे एफिडेविट कैसे बनवा के लेके जाएंगे? पढ़ता था, कभी कभी किताब पढ़ता था, मोबाइल में भी पढ़ाई करता था। वो यही सब देशभक्ति के बारे में, ये सब भगत सिंह को ज्यादा मानता था। जब हम बोलते थे उससे कि तुम बहुत ज्यादा भगत सिंह को मानते हो क्या, यही सब और कोई पढ़ाई नहीं है तुम्हारी, बोलता हाँ मुझे यही पढ़ना है। उनको ज्यादा मानता था, हमसे भी ज्यादा मानता था। अगर हम डांटते थे उसको कि फोटो लगाते हो, तुम पागल हो गए हो, तो बोलता है हाँ हम तुमसे ज्यादा मानते हैं उनको, भगत सिंह को। और भगत सिंह के बारे में हर चीज उसके पास, हर चीज उनके बाद। वहां भी गया, जहाँ के भगत सिंह गए उनके घर गया, वहां भी घूम के आया, हमको दिखाया, मम्मी देखो फोटो में यहाँ घूम के आया हूँ। हाँ, आप हमको गलत समझते हो, हम गलत नहीं है, हमारे बच्चे को कुछ न हो। जो नीलम ने किया वो सही किया या नहीं? सही किया भैया उसने, वो सिर्फ नौकरी के लिए ले गई थी भैया, नौकरी नहीं मिल रही थी, वो बहुत परेशान थी बेचारी, इतनी पढ़ी लिखी है, उसे नौकरी भी नहीं मिली थी। और जो कम पढ़े लिखे उसमें तो पैसे देकर लग रहे हैं, और इतनी पढ़ी लिखी है उसमें कोई नौकरी नहीं है, ये तो फिर पैसे का खेल है भैया। और इस बात से हम सहमत है कि उन्होंने गलत किया, ठीक है उनका तरीका गलत था, लेकिन जो उन्होंने नारेबाजी की है, जो उन्होंने मांग रखी है, वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल जायज है। कि एक लड़का अच्छा था, शिक्षित था, पढ़ा लिखा था, और इनको काम नहीं मिल रहा था, काम के लिए इधर उधर भटक रहे थे, काम का तलाश में थे, लेकिन अच्छा इनको चाकरी नौकरी नहीं मिल रहा था। पढ़ाई लिखाई करते थे और ट्यूशन का काम अपना जो छोटा छोटा बच्चा का है, या घर में कोई अगर 10th का 10वां का कोई अगर लड़की को, तो सब घर में जाके कोचिंग करवाते थे। जेंगरा में एक तो जहाँ वो रहते थे, यहाँ जेंगरा करके एक जगह है, वहाँ पे स्कूल है, इसमें भी ये अपना जॉब करते थे, 2 घंटा टाइम देते थे। हम भी गाड़ी चलाते हैं, ई रिक्शा ऑटो चलाते हैं, हमारे घर पे दोनों है। वो भी गाड़ी किराए पे चलाता है, मेरे दोस्त की, उसी कोटे पे चलाता है। और जो है कि क्या नाम है, लड़का बहुत बढ़िया, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी कुछ नहीं। मोहल्ले में हम भी आते हैं, जब तबीयत खराब होती है तभी आते हैं, बस देखते हैं कि वो अपना आया, रुका, चला गया, बस ये है, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारे घर के पास भी आता है, बैठता, बस मिला कि क्या नाम है, कोई काम है भाई तो बता दो मेरे को। हम दरअसल लोडिंग का भी काम करते हैं, तो इस चक्कर में मिलता है, तो कह कोई काम हो तो बता दो, तो हम भी जैसे काम होता था तो बता देते थे, इस हिसाब से मिलते रहते थे। और लौंडा बहुत बढ़िया था, फेसबुक आईडी पे भी जुड़ा हुआ है, भगत सिंह को फॉलो करता था, हर पोस्ट पड़ी हुई है, बढ़िया वो अपने आप में था। आपके साथ बैठकर वो मोबाइल भी चलाता होगा, तो कैसे वीडियोस को देखता था वो बस भगत सिंह वाली वही पोस्ट, देशभक्ति वाली देखता था ज़्यादातर। हाँ, उस पर कमेंट भी करता था। आ जाते थे अपना राइटिंग पेन, जैसे विवेकानंद हुआ, भगत सिंह हुआ, इन सब से इनसे ज़्यादा इनका ये लगाव था, बचपन से इनका मन में था। जो अपना देशभक्ति का है, भगत सिंह हुआ, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, ये सब चीज़ से इनका लगाव था। इनका संग में आना जाना, जितना भी डायरी था या कोई किताब कॉपी था, तो इनमें भगत सिंह का फोटो, भगत सिंह का कोई तस्वीर, ये इनका दिमाग बहुत तेज थे, मतलब हर एक चीज़ में इनका दिमाग तेज था, कोई चीज़ समझना बूझना करना, टैलेंट लड़का था ये। बड़ा बात है कि ऐसा लड़का, इतना शिक्षित लड़का जो काम के लिए भटक रहा था, काम नहीं मिल रहा था, ये लेके इनका मन में ये था, विरोध था कि जब हम लोग जैसा लड़का, पढ़ा लिखा लड़का का ऐसा काम और चाकरी अपना इंडिया में नहीं मिल रहा है, ये चीज़ इनका मन में था। जो अमोल शिंदे और उनके मित्र है, उन्होंने जो किया है उसमें से एक बात सामने लाने की कोशिश की है उन्होंने, कि बेरोजगारी का और गरीबी का मुद्दा बहुत अहम है। ये जो 5 लोग हैं, वो मुझे लगता है कि भारत के बेरोजगार लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो असंतोष से प्रेरित है, जिनके मन में गुस्सा है। अब सरकार को हम सिर्फ सरकार नहीं बोलते हैं, माँ बाप सरकार बोलते हैं। तो हमारे माँ बाप का ये काम होता है कि जब कोई अपना लड़का गुस्सेल होता है
असंतोष उसके मन में होता है तो उनके साथ बैठकर बात करे, उनका गुस्सा और असंतोष दूर करे। ये भूमिका न करते हुए अगर उनका गुनहगारीकरण हो रहा है तो वो मुझे गलत लगता है। इस तरह से यूएपीए लगाया जा रहा है या कोई और कानून लगाया जा रहा है ऐसे हमें समझा है, वो बहुत ही गलत है। इस तरह का गुनहगारीकरण नहीं होना चाहिए क्योंकि वो गुनहगार नहीं है, उनका उद्देश्य जो है वो देखना चाहिए। लॉ में हमेशा इंटेंशन इंपॉर्टेंट माना जाता है। उन लड़कों का इंटेंशन सिर्फ सरकार का ध्यान आकर्षित करना ये था और वो बोल रहे हैं कि हम भगत सिंह से प्रेरित हैं। भगत सिंह ने जब ये किया था तो पारतंत्र में हम थे, ब्रिटिश गुलामगिरी में हम थे, लेकिन अब हमारी ये सरकार है। मैंने पहले ही साफ कर दिया है कि उन्होंने जो करने की कोशिश की है वो कानून में नहीं बैठता है, उस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन हम जो एक बहुत ही लूज तरीके से किसी को भी आतंकवादी कह देते, अतिरेकी कह देते, ये गलत है। समाज ने भी अपना रवैया बदलना चाहिए। हमने सोचना चाहिए कि क्या समाज में बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, क्या समाज में गरीबी का मुद्दा नहीं है। अगर है तो उसके ऊपर काम करना चाहिए। अच्छी बात माननी चाहिए कि इसमें कोई मुस्लिम नहीं है। अगर कोई मुस्लिम इसमें इन्वॉल्व होता तो शायद इसका एक बहुत बड़ा स्वरूप दिया जा सकता था। ললিত, মনোরঞ্জন, সাগর, অমল, নীলম এক একজন ফেতারু, নবারুণ ভট্টাচার্যের সৃষ্টি ফেতারু, ডানাওয়ালা মানুষ যারা ভণ্ডদের আড্ডায় ঢুকে সব হিসেব নিকেশ পণ্ড করতে ওস্তাদ। যেমন লোকসভায় হলো, নিরাপত্তার বজ্র আঁটুনিকে ফসকা গেরো বানিয়ে ভেতরে ঢুকে রং বোমা ফাটিয়ে মনোরঞ্জন সাগররা বলতে চাইলেন পাবলিক খেপলে রাষ্ট্রশক্তি বয়াকার ল ছিঁড়বে। বাইরে থাকা নীলম আমলরা পালাতে পারতেন, পালাননি, স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছেন। ললিত মোবাইলগুলো ধ্বংস করে ফিরে এসে ধরা দিয়েছেন। जो हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय। ওরা ক্রিমিনাল নন, ওরা ফেতারু, রাষ্ট্রশক্তির ঘুম কেড়ে নেওয়া এক একজন জওয়ান। हर जगह, हर वक्त, हर चीज के लिए सवाल पूछते हो, सिवाय एक चीज के, अपनी सरकार चुनते वक्त। হাত আছে কাজ নেই, পেট আছে ভাত নেই, ফসলের দাম নেই, আদানি আম্বানিদের সম্পদের পাহাড় বাড়ছে, নির্বিকার চুরির রাজত্ব চলছে, নেতাদের বড় বড় ভাষণের তুবড়ি ছোটানো চলছে। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। তাই ক্রমশ সক্রিয় হচ্ছে ফ্যাতারুরা। কখনো দিল্লি, কখনো বিনপুর, কখনো কামদুনি, কখনো সল্টলেক, কখনো গান্ধী বা মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তি। ওদের কারো নাম ললিত, কেউ মনোরঞ্জন, সাগর, অমল, নীলম, কেউ পৃথা বিশ্বাস, কেউ শিলাদিত্য চৌধুরী, কেউ মৌসুমী বা টুম্পা কয়াল, কেউ রাসমণি পাত্র। ফেতারুরা ঝান্ডা ওড়ানো মিছিলে হাঁটে না, ওরা থাকে ঘরে ঘরে। কখন যে কে কোন ঘর থেকে বেরিয়ে কি করে বসে। ওরা নির্দিষ্ট কোনো সরকারের বিরুদ্ধে নয়, ওরা সিস্টেমের বিরুদ্ধে। ওরা ভাত চায়, কাপড় চায়, মাথার ওপর ছাদ চায়, কাজ চায়, পড়তে চায়, অসুখ হলে চিকিৎসা চায়, জন্মগত অধিকারগুলো চায়। অধিকার ছিনিয়ে নিতে হয়, কেউ এমনি এমনি দেয় না। আবেদন নিবেদন আর নয়, অনেক হয়েছে। একেবারে সোজা প্রতিবাদ প্রতিরোধের রাস্তায় হয়তো যেতে হবে। রাস্তাই রাস্তা দেখাবে। আমাদের এই দৈহিক সৌন্দর্য আমাদের দরকার নেই, আমরা চাই জীবনটা সুন্দর হয়ে উঠুক।